Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we are continue learning about chapter solution, and in chapter solution we are studying colligative properties. And as you know that there are four colligative properties. First one is the relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, and fourth one is the osmotic pressure. In yesterday we completed relative lowering of vapor pressure with the numerical, and now today we will see here the elevation in boiling point. What is elevation in boiling point? Before that we will know what is boiling point. Each and every topic will be defined before the starting main topic, elevation in boiling point. Okay, what is boiling point? First is that what is boiling point? What is boiling point? Point of liquid. What is boiling point of liquid? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो we can define it. As you know that boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid, or you can say solvent, as we are studying solution, then the temperature at which vapor pressure of solvent or a liquid become equal to the atmospheric pressure. Okay, that is the boiling point. That is the boiling point. Once again, the temperature at which vapor pressure of liquid or solvent become equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of that liquid or solvent. Clear? That suppose 100 degree centigrade of boiling point of water. It means at 100 degree centigrade vapor pressure of water become equal to the 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. Now you can write here the temperature at which vapor pressure of a liquid, oblique you can write solvent or solvent become equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is known as boiling point of that liquid or solvent.
the temperature at which vapor pressure of a liquid or solvent become equal to atmospheric pressure 1 atm के बराबर होगा, is known as boiling point of that liquid. Clear? Next question is, what do you mean by 100 degrees centigrade boiling point of water? Boiling point of water. Boiling point of water. Okay. It means, what will be answer? It means at 100 degree temperature, at 100 degree centigrade temperature, vapor pressure of water become equal to 1 atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 1 atm. Okay, or 1.013 bar. Okay, so at this temperature vapor pressure of water become equal to the atmospheric pressure. Okay, then you can write here what it means. It means at 100 degree centigrade vapor pressure of water became equal to 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. Okay, note down. I hope these two topics have been completely clear. क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हमने जान लिया, और उसका एक एग्जांपल के थ्रू ये जान लिया कि कैसे डिफाइन करें. ओके, अब हम ये जानेंगे व्हाट विल हैपन when a non-volatile solute is added to pure solvent. जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होगा, फिर उसके बाद हम जानेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन. What will happen when a non-volatile solute is added to pure solvent. जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, सोच के बता सकते हैं कि क्या होगा. जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट के अंदर, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, ये हमारे जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सपोज ये हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पे बना दिया.
This is the pure solvent. What is pure solvent? When a non-volatile solute, suppose a non-volatile solute is added, non-volatile solute is added, okay, non-volatile solute is added, what will happen? This non-volatile solute will take space between solvent. What? They will take space between solvent molecule. Okay? Between solvent molecule. This way. दिस ओके। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं वो प्योर सॉल्वेंट के बीच में जा कर के सेट हो जाएंगे और एक सरफेस एरिया यहाँ पे कवर कर देंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा कि पहले तो जिस समय जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया था, अब उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम बन रहा है। वेपर प्रेशर कम क्यों बन रहा है? वेपर कम बन रहा है। वेपर क्यों कम बन रहा है? क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्शन हो गया जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम फ्री हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कम फ्री हो रहे हैं। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। एक बार फिर से बता रहे हैं, when we add non-volatile solute to the pure solvent, then non-volatile solute molecule make an interaction between the pure solvent molecules. When the interaction develop between the pure solvent and solute non-volatile solute molecule, then vapor pressure of solution become less than pure solvent, become less than pure solvent. ओके, अंडरस्टैंड कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप करेगा जिसकी वजह से जो है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम से कम अवेलेबल होंगे, सारे बाइंड कर जाएंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर विल बी when a non-volatile solute is added to pure solvent, then interaction between non-volatile solute, and pure solvent molecule
molecule develop due to which vapor pressure of solution become less than that of vapor pressure of pure solvent. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या जान लिया कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट जो सोल्यूशन का है वेपर प्रेशर वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। ये हो गया इफेक्ट। अब हमने तो ये जान लिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, क्लियर। हमने ये जान लिया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर, ये जान लिया। अब इस वेपर प्रेशर के कम होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ बॉयल तब करेगी जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी। तो अभी हमने बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हमने ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहें या प्योर सॉल्वेंट से। अब उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें जितना टेम्परेचर बढ़ाना होगा वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, अब फिर से एक बार अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उस कम वेपर प्रेशर के कारण जो है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हम लोग जानते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है। अब उस कम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाना है तो हमें टेम्परेचर एलिवेट करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। अब वहाँ पे होगा एलिवेशन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिवेशन इन और elevation of boiling point. What is elevation of boiling point? यह क्वेश्चन घुमा करके दूसरी तरह से भी पूछ सकता है। What is effect of what is effect of adding non volatile solute on boiling point of
point of solution. Same answer of these two questions are same. Okay, now answer will be what? Answer ANS. ओके, व्हाट विल बी आंसर? अभी हमने बताया कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए, इक्वल करने के लिए जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो सॉल्यूशन का एलिवेटेड वेपर प्रेशर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to pure solvent, then vapor pressure of solution becomes less than pure solvent. And in order to equalize vapor pressure of solution, vapor pressure of solution to atmospheric pressure in order to equalize vapor pressure of solution to atmospheric pressure, how much temperature we increase, temperature we will increase that will be elevation in boiling point of solution. Okay, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, थ्योरी बहुत बड़ी हो गई। 2 क्वेश्चन, उनके जवाब 1। हमने बताया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर वी विल इंक्रीज, दैट विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ से देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नोट डाउन
सपोज बॉइलिंग, पहले ग्राफ देख लेते हैं फिर उसके बाद पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent is PB naught and boiling point of pure point of solution is PS या TVS, then elevation in boiling point will be delta TB, and delta TB is equal to what? Delta TB is equal to TS or TBS minus TB naught. Okay, now you see the graph. Okay, now you can see the graph here. Here is vapor pressure. Suppose vapor atmospheric pressure is this one, 181 is atmospheric pressure. Here is the boiling point. Okay, suppose at this temperature, here is the TB naught at this temperature. Boiling point of pure solvent. This one is the solvent. Okay, at this point atmospheric pressure and vapor pressure. This one is the vapor pressure. Now when we will add what? When we will add, you can take from this, is not visible in video, you can take from this point also. Okay, now it is visible. This is the TB naught, boiling point of pure solvent. When we add what? Solution. Okay, here is solute plus solvent. Okay, अब हमें इसके बराबर लाना, वेपर प्रेशर को इसके बराबर लाना होगा, तो इतना टेम्परेचर हमें बढ़ाना होगा. This much temperature will be increased. Okay, this is the TS or TBS, you can write. This difference is known as what? Delta TB. This is the delta TB. Okay, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो गए थे. ये लाइन वेपर प्रेशर को बता रही. अब जब हमने
सल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसका वेपर प्रेशर अभी यहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, इस टेम्परेचर पे यहीं पे है। अब इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, और जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो हो गया हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया T1 T2, ये जो डिफरेंस हो गया, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका बड़ा है, सॉल्यूशन का। ज़्यादा कौन है, सॉल्यूशन। कम कौन है, प्योर सॉल्वेंट। अब इसको घटाएंगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ा वो हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आज हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक एक पॉइंट करके समझ लिया। अब हम नेक्स्ट डे इसका क्या रिलेशन है जो है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल से, उस रिलेशन को देखेंगे। कैसे ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को हम देखेंगे कल। और कैसे मोलर मास हम किसी सॉल्यूट का इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ये भी देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।